کیونکہ میرے سے کوئی سوال تو پوچھتا نہیں ہے، اس لیے مجھے خود ہی لگتا ہے کہ جو تھوڑے سے جو مجھے کنفیوزنگ باتیں لگی تھی وہ میں ریپیٹ کر دوں. اچھا، ہم یہاں 5.4 پیج 70 یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم ریڈنگ ذرا جلدی جلدی کریں گے، اور بیچ میں جو مجھے لگے گا کہ کنفیوزنگ بات تھی وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا، عام طور پر جملہ اسمی، اچھا یہ اب نارمل اسٹرکچر ہے. اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر تھا یا وہ جو ہم نے یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ نارمل آرڈر کیا ہوتا ہے سینٹینس کا. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر متعلق بالخبر، اور جملہ فعلیہ میں فعل فاعل مفعول متعلق بالفعل. تو اب نارمل سینٹینس اسٹرکچر یہی ہوتا ہے کہ جس میں کسی کا آرڈر آگے پیچھے ہوتا ہے، کوئی چیز مقدم ہوتی ہے، کوئی مؤخر ہوتی ہے. تو عام طور پر جملہ اسمیہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے جو بھی ہم نے کی ہے. تاہم جملے میں خاص معنی پیدا کرنے کے لیے ترتیب تبدیل بھی کی جا سکتی ہے. ترتیب کی تبدیلی سے مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں جس کا اندازہ سیاق و سباق سے لگایا جا سکتا ہے. اگر جملے میں کوئی جز معمول کے خلاف پہلے آ جائے تو اسے مقدم کہتے ہیں، یعنی پہلے. اور اگر جو تاخیر سے آئے تو اسے مؤخر کہتے ہیں، ہم کر چکے ہیں. اور اگر کسی جملے میں کوئی جز مقدم ہو تو کوئی نہ کوئی دوسرا مؤخر ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، نیچے ایگزامپلس بھی دیے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں لکھا ہے عام طور پر پہلا نمونہ جس میں متعلق بالخبر مبتدا سے پہلے آتا ہے جملے میں اختصاص کے معنی پیدا کرتا ہے. اختصاص یعنی کہ صرف کے معنی پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم متعلق بالخبر کو مبتدا سے پہلے لے آئیں تو اس کے ترجمے میں ہمیں صرف ڈالنا پڑتا ہے. یعنی جس طرح اس میں ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اب إِلَى اللَّهِ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اس لیے یہ متعلق بالخبر ہے. اور المصیر جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ رفع ہے اور یہ پراپر بھی ہے، اور یہ سب سے پہلا رفع ہے اس لیے مبتدا ہے، لیکن یہ متعلق بالخبر کے بعد آیا. تو اس لیے وَإِلَى اللَّهِ یعنی کہ اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے، تو اس میں ہم صرف ڈال دیں گے اور صرف اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد وَعِندَهُ مفاتح الغیب. عندہ مطلب کہ اس کے پاس ہیں، اور مفاتح الغیب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، غیب کی چابیاں. تو اس کے اندر بھی ہمیں صرف ڈالنا ہے کیونکہ عندہ جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے، اور اسپیشل مضاف اور اس کا مضاف الیہ بھی متعلق بالخبر ہوتا ہے. تو اس میں بھی آئے گی کہ اور صرف اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا ہم وہ کرتے ہیں، لام اور عندہ کا جو فرق ہے نا وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، جو ہمیں ہمارے استاد نے بھی کرایا تھا. کیونکہ اس کے بعد آتا ہے لہو ملک السماوات والارض، یعنی کہ لہو جو ہے یہ پھر جار مجرور ہے، کیونکہ جب کسی ضمیر کے ساتھ لام لگتا ہے تو اس پہ زبر آتا ہے جب وہ حرف جر ہوتا ہے، ورنہ حرف جر کے ساتھ زیر آتا ہے حرف جر کے اوپر، لیکن جب وہ ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتا ہے. اس لیے لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، متعلق بالخبر ہے اور مقدم ہے. ملک السماواتی والارضی، اب ملک السماواتی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور پھر واو ہے تو حرف عطف ہے، تو الارضی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے واو کی وجہ سے، اور اسی لیے وہ جار بھی ہے. تو یہ پورا کا پورا ایک ہی باسکٹ میں جائے گا، ملک السماواتی والارضی، اور یہ ہوگا ہمارا مبتدا. اور لہو یعنی کہ اس کے لیے ہے یا اس کے پوزیشن میں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے لیے ہی ہے. اور ملک السماوات والارض تو اس میں بھی صرف آ جائے گا کہ صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت. اب اندہ بھی جو ہے اندہ اور لام جو ہے اس کے تھوڑے سے نا میننگ سملر ہوتے ہیں، کہ اونرشپ کے اس میں آتا ہے. یہ لام بھی اونرشپ بتا رہا ہوتا ہے اور اندہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے. تو اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح اگر میں کہوں
अगर मैं कहूँ ले लो उस्ताज़ी ले लो उस्ताज़िल कलम, ठीक है? और कहूँ मैं इंदल उस्तादुल कलम। तो इसका वैसे मतलब कि तकरीबन सिमिलर मीनिंग है, लेकिन लाम का मतलब है एक तो ये क्योंकि मैंने ये लिल उस्ताज़ी पहले किया तो मैं कहूँगी कि ये कलम सिर्फ़ उस्ताद का है। और यहाँ पे भी इंदल उस्तादी मैंने मुकद्दम किया है तो इसका भी यही मतलब है कि ये पेन सिर्फ़ उस्ताद का है, लेकिन लिल उस्ताद का मतलब है कि इस वक़्त वो उस्ताद के पास है कलम। मतलब जिस तरह मैं कहूँ कि ये मोबाइल मेरे पास है या मेरा है तो ये मेरे अभी हाथ में है तो मैं लाम लगाऊँगी, लेकिन ये मोबाइल कहीं और भी अगर पड़ा हो तो ये मेरा ही होगा। तो अगर इंदा इस्तेमाल हो तो वो होता है कि इस वक़्त ज़रूरी नहीं है उनकी हाथ में हो, लेकिन उनकी पोज़ेशन में है। यानी कि इंदल उस्तादिल कलम का मतलब है कि इस वक़्त ज़रूरी नहीं कि उन्होंने पकड़ा हो या उनके पास हो सकता है उनके घर में पड़ा हो, लेकिन है वो उनका ही। तो इंदा का मतलब ये होता है इंदा आपकी पोज़ेशन शो कर रहा है और लाम जो है वो बता रहा है कि वो इस वक़्त वो चीज़ जो है वो उनके पास ही है। तो ये फ़र्क है थोड़ा-सा इंदा और लाम का। और लाम जो है वो लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है। जिस तरह अगर मैं बताना है कि मेरे भाई हैं या मेरे मेरे 2 भाई हैं या किसी ने, तो वो मैं अ, लाम के साथ भी कर सकती हूँ जिस तरह लिल मरियम अख़वानी यानी मरियम के 2 भाई हैं। ये लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है। और इंदा जो होता है ये चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये वैसे एक जनरल नॉलेज है। मैंने कहा आपको दे दूँ। अच्छा जी। अच्छा। तो ये तो हम कर रहे थे इख्तिसास ही हम पहले भी कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। या अच्छा हाँ, ये जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है। याद रखें कि अगर मुब्तदा नकिरा हो, तो उसे लाज़मन मुअख्खर बनाना पड़ता है। ऐसी सूरत में मुतालिक बिल खबर तक़दीम जैसे ख़ास मानी नहीं करता। इसकी वजह ये है कि जुमले को तरतीब देने का इसके अलावा और कोई तरीका मौजूद नहीं। अब क्यों मौजूद नहीं? अच्छा, अभी तक हम जो है ना ग्रामर कर रहे थे मैथ की तरह कि ये फ़ॉर्मूला है और ये चीज़ उसमें हम उसी तरह जुमले को फिट कर देते हैं फ़ॉर्मूला कि जिस तरह अगर मैंने कहा मुतालिक बिल खबर जार मजरूर है या स्पेशल मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह है। आप जैसे ही वो देखते हैं, हम उसको कह देते हैं कि अच्छा जी ये मुतालिक बिल खबर है। लेकिन अरबी जो है वो स्टार्ट होती है मैथ्स की तरह कि हमें सारे फ़ॉर्मूले हम सीखते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो जिस तरह जब हम इंग्लिश का ऐसे लिख रहे होते हैं, तो हम कोई फ़ॉर्मूले नहीं डालते हैं उसके अंदर। वो हम मीनिंग के हिसाब से अल्फ़ाज़ को आगे-पीछे भी कर लेते हैं, एक अल्फ़ाज़ को मुख्तलिफ़ तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अरबी में भी स्टार्ट मैथ की तरह होता है और आगे थोड़ा-सा वो फिर लैंग्वेज बन जाती है। हमें लैंग्वेज की तरह उसको सोचना पड़ता है कि ये चीज़ है तो जार मजरूर, लेकिन क्या ये जार मजरूर में फिट मतलब लेकिन ये मुतालिक बिल खबर है या नहीं है, फिर हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ता है उसके बारे में। तो उसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर मैं कहूँ हुँ, अच्छा अगर मैं पहले उर्दू में कोई मिसाल दूँ कि जिस तरह हम वैसे मौसूफ़ सिफ़ा करते हैं, तो मैं कहूँ अगर कोई कोई मज़ेदार चीज़ मैं लिखूँ मज़ेदार केक। तो मज़ेदार जो है वो केक की
सिफा है, मतलब कि ये इसको केक को डिस्क्राइब कर रहा है कि केक मजेदार है। अगर मैं लिखूं फ्रिज में पड़ा हुआ केक, अब ये भी जो है जैसे मौसूफ सिफा जो है ये मुरक्कब है, मुरक्कब होता है, पूरा जुमला नहीं होता, ठीक है ना। मुरक्कबात में हमने किया था मौसूफ सिफा, तो मौसूफ सिफा कभी भी पूरा जुमला नहीं होगा। इसमें अगर हमने कहना है कि केक मज़ेदार है तो हमें वो पूरा जुमला बनाना पड़ेगा। सिर्फ मौसूफ सिफा होती है, वो पूरा जुमला नहीं होती, इसमें है नहीं आता। तो अगर मैंने एक मुरक्कब ही बनाया है कि फ्रिज में पड़ा हुआ केक, मतलब मैंने बात पूरी नहीं की है, तो फ्रिज में पड़ा हुआ ये पूरे का पूरी बात जो है ये भी एक तरह से केक की डिस्क्रिप्शन है, केक की सिफा है। केक कि केक जो है कौन सा केक, वो जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, या केक की को क्या, एक तो मजेदार है वो, दूसरा क्या है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, ये भी उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इसको भी हम केक की सिफा कह सकते हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ केक। अगर मैंने कहना है केक फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो तो एक पूरा जुमला बन जाएगा, वो डिफरेंट है। और अगर मैंने केक को डिस्क्राइब करना है और आगे फिर उसके बारे में कोई बात करनी है, तो मैं कहूंगी फ्रिज में पड़ा हुआ केक, कि मैं उस केक की बात कर रही हूँ। या जिस तरह अगर मैं लिखूं रजुलुन मिन मक्का था, एक आदमी मिन मक्का था, मक्का से, ठीक है। तो ये जो मक्का से, वो आदमी मक्का से है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये आपका अभी जुमला, अगर इसको हमने जुमला बनाना है तो हमें इस रजुलन को मुअख्खर करना पड़ेगा कि एक आदमी मक्का से है, या वो आदमी मक्का से है। तो रजुलन मिन मक्का थी, अगर आपका मुब्तदा नकिरा होता है और उसके बाद जार मजरूर आ जाता है, जिस तरह मिन मक्का था, जार मजरूर है, तो ये आमतौर पे उसकी सिफा बन जाता है। तो अगर आपने उसको जुमला बनाना है तो आपको इसको रजुलन को मुअख्खर करना पड़ेगा। अब ये जुमला बन गया, इसमें मुब्तदा मुअख्खर है, लेकिन क्योंकि मुब्तदा आपका नकिरा है, इसलिए ये एक नॉर्मल ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि मुब्तदा जो होता है वो नॉर्मली मारिफा होता है। तो अगर तो आप मारिफा आपका मुब्तदा है तो वो आप उसको नॉर्मल ऑर्डर में ही करेंगे। अर रजलू, कि वो खास कोई आदमी, द मैन इज फ्रॉम मक्का, वो हो जाएगा अर रजुलू में मक्का था, कि वो आदमी, खास आदमी मक्का से है। लेकिन एक आदमी जो मक्का से, अगर मैं उसमें से अल हटा दूंगी, अगर मैं इसको शुरू में लगाऊं, अगर तो मैंने अल लगा दिया, ठीक है ना, अगर मैंने अल लगा दिया तो ये एक नॉर्मल जुमला बन गया, अर रजुलुन, क्योंकि ये मुब्तदा है और मुब्तदा मारिफा ही होता है नॉर्मली। तो ये होगा एक आदमी, एक या वो आदमी, खास आदमी की बात हो रही क्योंकि अल है, मक्का से है। लेकिन अगर मैं इससे अल हटा दूंगी तो ये होगा एक आदमी जो मक्का से है। अब ये बात पूरी नहीं हुई, या जो आदमी मक्का से है, अब आगे ये बात कंप्लीट होनी है। ये अभी आपका ये मिन मक्का था, रजुलन की सिफा है कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो मक्का से है। तो ये एक इस आदमी की डिस्क्रिप्शन है। इसको अगर हमने जुमला बनाना है तो हम इसको फिर आगे कंप्लीट करेंगे, या फिर इसी को हमने जुमला बनाना है तो हमें रजुलन को फिर एंड में डालना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि एक आदमी मक्का से है, ये पूरा जुमला बन गया। तो अगर मुब्तदा जब भी नकिरा होता है उसको हमें मौखर करना पड़ता है। ये इसका नॉर्मल ऑर्डर है, मौखर तो है लेकिन इसमें इख्तिसास नहीं आएगा।
जिस तरह मैं कहूँ दर्सुन मिनल उस्तादी, दर्सुन मिनल उस्तादी, तो इसका मतलब ये इसका मतलब होगा दर्स जो उस्ताद की तरफ से है। अगर मैंने कहना है उस्ताद की तरफ से दर्स, इसको जुमला बनाना है, तो मैं इसको मौखर कर दूंगी क्योंकि दर्स जो है वो नकिरा है। इसका अब इसको मौखर करने का ये मतलब नहीं है कि वो दर्स सिर्फ उस्ताद की तरफ से है। ये सिर्फ हम इसको मौखर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नकिरा है। दर्स मिनल उस्तादी दर्सुन, ये नॉर्मल ऑर्डर है एक जुमले का, और अगर हम इसको शुरू में डालेंगे तो हम एक दर्स की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो उस्ताद की तरफ से है। ये जुमला पूरा नहीं हुआ, दर्स जो उस्ताद की तरफ से है। क्योंकि आगे अभी बुक में भी इसका एग्जाम्पल आ रहा है। जिस तरह कुरान में है रजुलिन मिनल करियतैनी अज़ीमिन, रजुलिन मिनल करियतैनी अज़ीमिन। अब यहाँ पे भी रजुलिन जो है ये है नकिरा है, और मिनल करियतैनी उसके बाद जार मजरूर आ रहा है। तो जैसे ही हम नकिरा इसम के बाद जार मजरूर देखें तो हमारे ज़हन में आना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुतालिक बिल खबर हो, ये उसकी सिफा हो सकती है। क्योंकि ये जब कुरैश थे वो कहते थे कि अगर किसी नबी ने आना था तो ये दोनों बस्तियों में से कोई अजीम आदमी क्यों नहीं आ गया, ठीक है ना। तो रजुलिन मिनल करियतैनी अजीमिन, के ऐसा आदमी जो के दोनों बस्तियों में से हो और अजीम हो। तो यानी कि ये मिनल करियतैनी भी रजुलिन की सिफा है और अजीमिन इसकी दूसरी सिफा है। यानी कि दो सिफा उन्होंने इस आदमी की बताई कि ऐसा आदमी जो दोनों बस्तियों में से हो और बहुत कोई बड़ा आदमी हो। तो ये दोनों ही इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं उस आदमी को जो वो कहते थे कि जिसको नबी होना चाहिए था। कि अगर तो अगर हम इसको मुब्तदा बनाना है हमने, और हमने मतलब कि जुमला बनाना है कि वो आदमी दोनों बस्तियों, वो अजीम आदमी दोनों बस्तियों में से है, तो फिर हम रजुलिन को मौखर करेंगे, फिर हम रजुलिन को इधर डाल देंगे कि वो अजीम आदमी दोनों बस्तियों में दोनों बस्तियों में से है। ये आपका पूरा जुमला हो गया। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर किसी नबी ने आना था तो वो दोनों बस्तियों में से कोई अजीम आदमी क्यों नहीं आया। तो वो दोनों चीजें, दो बस्तियों में से और अजीम, दोनों उस आदमी को डिस्क्राइब कर रही हैं। ये उनकी ये सिफा है, इवन दो ये जार मजरूर है। तो जब भी नकिरा इसम के बाद जार मजरूर आएगा तो आपने सोचना है कि ये जार मजरूर जो है वो उस नकिरा इसम की सिफा हो सकती है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर ये इसको हम मौखर करते, सॉरी, तो फिर हम ये फिर वो होता, रफा हो जाता। ये पीछे से जार आ रहा है ना। अगर मिनल करिए, अगर मैंने कहना होता एक अजीम आदमी दोनों बस्तियों में से एक अजीम आदमी है, या एक आदमी दोनों बस्तियों में से है, तो फिर मैं रजुलन को वो करती,
मौखर, और ये देखें ये दोनों रफ़ा, ये मुब्तदा बन गया हमारा, और मिनल करियतैनी आपका मुतालिक बिल खबर बन गया। लेकिन ये मुकद्दम है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि रजुलन आपका वो है, नकीरा है। अगर ये प्रॉपर होता कि एक ख़ास आदमी है जो कि दोनों बस्तियों में से है, कि ये आदमी या वो अगर किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं कि ये आदमी इन दोनों बस्तियों में से है, तो फिर हम अर-रजुलुन अल-अज़ीमुन मिन अल-क़रयतैनी, वो दोनों पे अल आ जाएगा क्योंकि मौसूफ़ सिफ़ा है रजुलुन अज़ीमुन, और फिर मिन अल-क़रयतैनी कि ये ख़ास आदमी इन दोनों बस्तियों में से है। अभी लेकिन वो जनरल बात कर रहे थे कि एक आदमी, एक कोई बड़ा आदमी होता जो इन दोनों बस्तियों से होता। तो अगर तो हमने पूरा जुमला बोलना है कि एक ख़ास आदमी इन दोनों बस्तियों में से है, तो फिर हम इस तरह उसको मौखर करेंगे। और अगर इसको मौखर हमने क्योंकि नहीं किया, ये यहाँ है और ये रजुलिन जर है, ये जर इससे पीछे किसी वजह होगी इसकी जर होने की। तो रजुलिन मिनल करियतैनी अजीमिन, ये दोनों चीज़ें मिनल करियतैनी और अजीमिन रजुलिन की डिस्क्रिप्शन है। जिस तरह एक और एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल्स करते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लहू अल मुल्कु व लहुल अलहम्द। अब यहाँ पे लहू जो है ये फिर मुतालिक बिल खबर है क्योंकि जार मजरूर है और ये पहले आ गया है। अल मुल्कु बाद में आया है, लेकिन अल मुल्कु जो है इसके साथ अल लगा हुआ है, जब मुब्तदा नॉर्मली अल के साथ ही होता है, इसलिए इसको मौखर अगर हमने किया है तो इसमें हमने स्पेशल मीनिंग डाली है। इसी तरह वलहुल हम्दु यहाँ पे भी अल है, इसलिए इसमें स्पेशल मीनिंग आएगी कि उसके लिए ही सारी मिल्कियत है और उसके लिए ही सारी हम्द है। तो यहाँ पे इख्तिसास आएगा क्योंकि ये जो नॉर्मल आपका मुब्तदा है जो कि मारिफा होता है, ये तो पहले आना चाहिए ना नॉर्मल ऑर्डर में, मारिफा मुब्तदा पहले, फिर खबर, फिर मुतालिक बिल खबर। लेकिन अगर आप कहेंगे जिस तरह हुदन फीही, जिस तरह हम कर देते हैं हुदन फीही, अब ये हुदन जो है ये मारिफा नहीं है, तो ये गाइडेंस, ये जो है हिदायत जो इसमें है, तो ये हमने अभी जुमला पूरा नहीं किया। ये नकिरा इसम के बाद जार मजरूर आया है, तो हम इस गाइडेंस को सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसकी एक सिफा है कि गाइडेंस जो इसमें है। अगर हमने कहना है कि हिदायत, इसमें हिदायत है, तो या तो हम अल हुदा कहेंगे, अल हुदा फी का मतलब है कि जो सारी की सारी गाइडेंस अल हुदा है, या फिर हम कहेंगे फीही के बाद हुदन कर देंगे, फीही हुदन के इसमें हिदायत है। अभी क्योंकि ये पहले आया है, इसमें इसका अल भी नहीं है और फिर फीही आया, तो ये हुदन की सिफा है फीही कि गाइडेंस जो इसमें है, हिदायत जो इसमें है। अब आगे हमने जुमला पूरा नहीं किया, ये मुरक्कब है। इसी तरह अगर ये इसमें भी अगर हम अल हटा दें तो ये इख्तिसास हट जाएगा, इसका ये जो होगा मुल्क, मुल्कु लहू मुल्कु व लहू हमदु, इसका मतलब होगा वो किंगडम जो उसकी तरफ से है और जो जो उसका उसके लिए है, और हमद जो उसके लिए है। ये हमद की सिफा, ये दोनों चीजें नहीं, सॉरी,
یہ تو نارمل ہے کیونکہ مؤخر ہے. اگر ملک کو ہم پیچھے لے جائیں گے اس کو سوری اچھا یہ ہم نے نکرہ کر دیا نا, نکرہ کو بعد میں ہونا ہی ہونا ہے, تو یہ ہوگا ایک کنگڈم اس کا ہے اور ایک حمد اس کی ہے, کوئی ایک حمد اس کی ہے. یہ بھی پورا جملہ ہی ہے لیکن اس میں صرف نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو اب نارمل آرڈر ہو گیا کیونکہ نکرہ ہے تو نکرہ نے تو مؤخر ہونا ہی ہونا ہے. پہلے ہم نے ال لگایا تھا تو اس کا مؤخر ہونا ایک ایب نارمل بات ہو گئی تھی, اس لیے ہم نے صرف لگا دیا تھا. اگر ہم اس کو ال کو ہٹا دیں گے تو اب یہ ایک نارمل جملہ بن گیا کہ ملکیت اس کی ہے اور حمد اس کی ہے, لیکن صرف ہٹ گیا یہاں سے. اور اگر ہم اس کو شروع میں لگائیں گے ملک لہو اور حمد لہو, اب جو ہے یہ جو لہو ہے یہ حمدو کا اور ملکو کی صفہ بن گئی ہے کہ وہ ملک جو اس کا ہے اور وہ ہم جو اس کی ہے. یہ لہو جو ہے اب کیونکہ نکرہ اسم پہلے آ گیا ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, اب اس کی صفہ بن گئی ہے تو یہ مرکب بن گیا, اب یہ جملہ نہیں رہا. اسی طرح ہدن فی ہی جو ہے یہ مرکب ہے, جملہ نہیں ہے. ہدایت جو اس میں ہے اب جس طرح بک کے اندر یا ایک اور ایگزامپل کریں, جس طرح قالا قائل منہم, کالا ہو گیا اس نے کہا, قائل کیونکہ یہ کالا ہوا ہے, ہوا اور ہیا ہو تو ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر اس کا ظاہری فائل ڈھونڈتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہمیں رفع مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کالا کا فائل ہے. تو قائلن یعنی بولنے والا, اسپیکر. اس نے قائلن جو بات کر رہا تھا, جو اسپیکر تھا, اس نے کہا منہم ان میں سے, یعنی کہ ان میں سے جو ہے یہ قائلن کی, مطلب اگر کامن سینس دیکھیں تو قائلن جو ہے قائلن کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کون تھا اسپیکر جو ان میں سے ہی تھا, منہم ان میں سے. تو ان میں سے جو بولنے والا تھا قائلن اسپیکر تھا, اس نے کہا. تو یہ منہم جو ہے اس کو ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کالا ہے تو یہ متعلق بالفعل ہے. کالا فعل ہے, قائلن فاعل ہے, اور منہم جو ہے وہ قائلن کی صفہ ہے کیونکہ یہ نکرہ اسم ہے اور اس کے بعد جار مجرور آیا ہے. اور کامن سینس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ منہم جو ہے یہ ہمیں یہ قائلن کو ڈسکرائب کر رہی ہے کہ اسپیکر کون تھا ان میں سے جو تھا. تو یہ جو منہم ہے تو یہ جار مجرور, لیکن اس کو ہم کہیں گے فی محلی رفع, کیونکہ صفہ جو ہوتی ہے اس کے وہ اس کا اعرابی حالت اس کے موصوف کی ہونی چاہیے, اس لیے کیونکہ یہ تو جار مجرور ہے, لیکن ہم نے تو پڑھا تھا کہ صفہ ہمیشہ اس کی اور اس کی اعرابی حالت سیم ہوتی ہے موصوف اور صفہ کی. اس لیے ہم یہ منہم جو کہ ڈسکرائب کر رہا ہے قائلن کو, اس کو ہم کہہ دیں گے فی محلی رفع, جہاں پہ رفع ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ اس کی صفہ ہے. اب اگر ہم یہ نہ لکھتے, اگر ہم خالی بول دیتے کالا منہم, کالا کا مطلب اس نے کہا
उनमें से, तो इसकी इतनी सेंस नहीं बनती। ये इसका वो मुतालिक बिल फेल होता। तो ये हमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि जार मजरूर। अब इसको एक और एग्जांपल करते हैं कुरान में से। सारा का हम पहले वो करते हैं, चलिए ये करते हैं। सारा का अखुन लहू मिन कब्लु। अब यहाँ पे भी सरका उसने चुराया, सरका का मतलब चुराया, उसने चुराया, सरका भी हुआ है, तो इसमें हम आउटसाइड डूअर ढूंढेंगे, तो इसके फौरन बाद हमें अखुन मिल गया। अखुन उस यानी कि अखुन लहू के उस उनमें अखुन लहू इसके भाई, इसके भाई ने चुराया, मेन कबलू बहुत पहले। अब अखुन जो है ये फिर वो हमारे पास आ गई है एक नकिरा इसम, ठीक है। तो उसने चुराया, लहू जो है ये अखुन को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका भाई, कि भाई जो उस मतलब कि ब्रदर ही हैज, यानी भाई, इसका जो भाई है, एक भाई है, इसने चुराया। जब ये जब हजरत यूसुफ का जब वाकया है उसमें होता है ना कि बिन्यामीन को वो चोरी के लिए पकड़ लेते हैं, जब वो साबित होता है कि जी कप निकल आया है उनके सामान में से, तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर इसने चोरी की है तो इसका एक भाई था, एक भाई भी है जो इसका है, उसने भी चुराया था बहुत पहले। तो वो ये जो लहू है ये उसको अखुन को डिस्क्राइब कर रहा है, भाई जो इसका है उसने चुराया था मिन कबलू बहुत पहले। तो ये लहू जो है ये अखुन की सिफा है। तो सरका आपका फेल है, अखुन फाइल है, लहू जो है ये फाइल की सिफा है, ये मुतालिक बिल फेल नहीं है। ये नकिरा इसम के बाद जो जार मजरूर आया है ये इस इसम की सिफा हो गई, और जो मिन कबलू है ये फिर जार मजरूर है, और वो ये आपका मुतालिक बिल फेल है मिन कबलू। जो लहू है ये सिफा है अखुन की, फी महल्ली रफा। और ये मिन कबलू में कबलू के ऊपर पेश क्यों है ये भी हमने किया था कि ये जो स्पेशल मुदाफ कुछ ऐसे होते हैं जो अगर हम मुदाफ को मुदाफ इलैह नहीं मिलता तो वो कहता है ठीक है फिर मैं अपना, मुझे मुदाफ इलैह नहीं मिलेगा तो मैं अपना स्टेटस भी नहीं बदलूंगा, मैं कबलू ही हूँ, फिर या मुझे मुदाफ इलैह दो या फिर मैं कबलू का कबलू ही रहूंगा। अब क्योंकि कबलू के आगे कबलू लाइट है, कबलू मुदाफ है और उसको मुदाफ इलैह नहीं मिला, तो बेशक इससे पहले मिन आ गया है तो ये जर, लेकिन वो कहता है ठीक है मैं जर हूँ लेकिन मैं मेरे ऊपर पेश ही रहेगा क्योंकि मुझे मुदाफ इलैह नहीं मिला, इसलिए ये मिन कबलू है, मिन कबली नहीं है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम वो कर देते हैं कि जो जार मजरूर होता है ना, शुरू में तो हमने बस किया कि जार मजरूर क्या होता है, बाता काफला वाओ मिनफियान अला हत्ता इला। अब वो जार मजरूर करता क्या क्या है, तो चार काम होते हैं जार मजरूर के। इसको याद रखने के लिए हम इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाए। जार मजरूर एक तो हमने किया कि जी ये होता है मुतालिक
بالखबर जब आप देखेंगे एक जुमला इस्मिया में जार मजरूर आया है तो वो मुतालिक बिल खबर है और जब एक जुमला फेलिया में मुतालिक बिल खबर आया है तो वो मुतालिक बिल फेल है और जार मजरूर क्या करता है हमने जब किया था ये लईसा और माँ वाली हम कर रहे थे कि लईसा मोमिनन और अगर ये मोमिन नहीं है और अगर हमने उसके ऊपर स्ट्रेस डालना है हाँ जी अच्छा और अगर हमने उसके ऊपर स्ट्रेस डालना है तो हम एक बार ऐड कर देते हैं उसके ऊपर तो वो लईसा बी मोमिनिन हो जाता है बी जो है क्योंकि वो हर्फ जर है तो वो उसका लईसा का जो खबर होती है वो हमेशा हमने किया था नसब होती है तो लईसा मोमिनन कि वो मोमिन नहीं है और लईसा बी मोमिनिन यानी कि वो बिल्कुल भी मोमिन नहीं है तो हमने वो बा जायदा किया था तो एक जार मजरूर कब आता है जब वो बा जायदा के तौर पे यूज होता है तो एक जार मजरूर तब आता है जब हम किसी चीज़ को वो बा जायदा बनाते हैं खबर के ऊपर एक और जायदा भी होता है वो हमने भी नहीं किया अभी हमने बा जायदा किया और अब चौथी चीज़ हमने अब की है कि जब जब वो किसी नकिरा इस्म की सिफा हो ये हमेशा नहीं होता ये सिर्फ तब होता है जब इसकी सेंस बन रही हो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नकिरा इस्म के बाद जो जार मजरूर आएगा वो उसकी सिफा ही होगी लेकिन वो हमें कॉमन सेंस से पता चल जाएगा क्योंकि वो उसकी सेंस नहीं बन रही होगी जब भी जो जार मजरूर नकिरा इस्म को डिस्क्राइब कर रहा है जिस तरह हम ये अखुन लहू जो है अखुन नकिरा है उसके बाद लहू उसको डिस्क्राइब कर रहा है भाई जो उसका है उसका मतलब उसका भाई है तो वो भाई को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका है वो जिस तरह हिदायत जो इसमें है हिदायत किस हिदायत की बात हो रही है जो इसमें है इसमें हिदायत को डिस्क्राइब कर रहा है और काला कायलुन मिनहुम तो मिनहुम जो है वो स्पीकर को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा स्पीकर जो उनमें से था इसी तरह रजुलिन मिनल करियतैनी कि एक आदमी जो इन दोनों बस्तियों में से हो तो ये दोनों बस्तियों में से होना उस आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक डिस्क्रिप्शन उसकी ये है कि वो इन दोनों बस्तियों में से होता और एक डिस्क्रिप्शन ये है कि वो अजीम होता तो आप जब भी नकिरा इस्म के बाद जार मजरूर देखें तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसकी सिफा है और यही चार पूरे कुरान में आपको जब भी जार मजरूर नजर आएगा तो वो यही चार उस केसेस में आएगा या तो मुतालिक बिल खबर होगा या मुतालिक बिल फेल होगा या वो जायदा के तौर पे होगा या फिर वो किसी नकिरा इस्म की सिफा होगी तो इससे थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि ये चार जब भी आपने जार मजरूर देखना है तो आपने ये चार पॉसिबिलिटीज देखनी है अच्छा मुझे अच्छा आज तो खैर क्लास में है ही सिर्फ नसरीन उनकी कभी आवाज ही नहीं आती तो लेकिन जिनकी आवाज आती भी कभी भी मुझसे कोई सवाल पूछता नहीं है इसलिए मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि शायद ये ना समझ आया हो या शायद अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया तो शायद ना आ गया हो फिर मैं सोचती कि सवाल ना करने की भी ना 3 वजह हो सकती हैं आप लोगों की तो कल मैं कहीं गई तो वहाँ जिक्र हुआ कि मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो फौरन उनके ज़हन में एक सवाल आया कि अच्छा आप ग्रामर पढ़ा रही हो तो मुझे ये बताओ कि इस आयत में ये ऐसे क्यों है इस आयत में ये ऐसे क्यों है हालांकि वो मेरे से तो नहीं पढ़ रहे तो मैंने सोचा कि मेरी क्लास में तो कभी कोई मेरे से सवाल नहीं करता तो उसकी 3 वजह हैं एक तो ये हो सकती है कि आप लोग कभी बाद में पढ़ते ही नहीं है तो आपके जहन में सवाल आता नहीं है दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके जहन में सवाल आता है लेकिन आप पूछने से झिझकते हैं कि पता नहीं लगेगा कि मुझे क्यों नहीं समझ आया कि या ये शायद सवाल सही नहीं है तीसरी वजह ये हो सकती है कि आपको लगता है कि शायद उसका जवाब मुझे भी नहीं आता होगा तो शायद मैं शर्मिंदा हो जाऊं कि मुझे नहीं आ रहा तो तीसरी वजह का तो ये है कि अगर मुझे नहीं भी आएगा तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी मैं आपको कह दूंगी कि मुझे भी नहीं आ रहा और फिर मैं उसका जवाब ढूंढूंगी और फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी या मुझे आता होगा तो वो उसी वक्त मैं आपको बता दूंगी ताकि किसी और के ज़हन में भी आ रहा हो वो सवाल तो वो क्लियर हो जाए और अगर आपको जो भी सवाल आए आप ये ध्यान में रखें कि
आपको जितना भी आपको लगे कि ये तो सबको समझ आ रही है, हो सकता है जैसे आप सोच रही हैं कि मैं कोई और सवाल नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, हो सकता है बाकी भी यही सोच रहे हों। तो अगर समझ आ भी रही है तो फिर भी एक और किसी और तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ तो हो सकता है बाकियों को मज़ीद क्लियर हो जाए। तो सवाल ज़रूर पूछा करें, ताकि मुझे सोचना ना पड़े कि क्या चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, या हो सकता है मैं दोबारा इसको करा रही हूँ, आपको लगे कि ये तो वक़्त ज़ाया हो रहा है, तो हमें समझ आ गई थी। तो मुझे वो फिर अंदाज़े लगाने पड़ते हैं कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होगी और क्या चीज़ आ गई होगी। इसकी वजह फर्स्ट पॉइंट है, हम पढ़ते नहीं है, नालायक बच्चे, हम नालायक बच्चे हैं। नहीं, आप पढ़ती होंगी, आप देखिए मुझे ये इस बात पे यकीन नहीं है कि आप पढ़ती नहीं हैं। पढ़ती तो आप होंगी, लेकिन सवाल कोई नहीं करता। मुझे याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। भूलना तो अब ये तो रूल्स हैं, ये आपको ऐसे तो नहीं रट्टे तो नहीं इसके लगेंगे ना, ये तो जब आप बार-बार इसको पढ़ेंगे फिर आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। वो अप्लाई कर के फिर याद रहता है। अब जिस तरह मैं आपको बार-बार कराती हूँ, फिर एग्ज़ाम्पल्स करती हूँ तो मेरा पक्का होता जाता है। कई रूल्स होते हैं जो मुझे भूल गए होते हैं, फिर मुझे दोबारा याद आते हैं। इसका एक और भी हल है। आप बेशक हफ्ते को हमारा टेस्ट ले लिया करें। 1 हफ्ते का दिन ना सिर्फ 15 मिनट्स टेस्ट ले लिया करें, 15 मिनट्स। हुँ। टेस्ट लिया करें ताकि हमें पता हो कि हमने इन 2 डेज़ में हमने इसे रिपीट करना है, और दोबारा जो आपने पढ़ाया है, उसे आप रिपीट सुनेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा हमने कितना समझा है। चलें, ऐसे भी कर लेते हैं। कोई एक दिन रख लिया करेंगे, फिर चलो महीने में 1 दिन ही रख लें, या एक कॉन्सेप्ट करने के बाद उसका टेस्ट कर लें, इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये जो अब मैं समझा रही हूँ इसकी समझ आ गई है कि जी नकिरा इसम के बाद जो जार मजरूर आता है वो उसकी सिफ़ा हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है, ये अच्छी तरह समझ आ गई है। चलिए। हम पढ़ रहे थे, अच्छा ये। अब इसके बाद इसी का एग्ज़ाम्पल है फ़ी कुलूबिहिम मरदुन। अब फ़ी कुलूबिहिम इनके दिलों में है मरदुन, बीमारी। अब ये क्योंकि मरदुन जो है ये नकिरा है, तो इसका मौखर होना नॉर्मल बात है। यही पहले इन्होंने यही बात की हुई है कि ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कोई स्पेशल मीनिंग हो कि इनके दिलों में बीमारी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ इन्हीं के दिलों में बीमारी है, और लोगों के दिलों में भी हो सकती है। तो ये क्योंकि नकिरा था, इसलिए इसको मौखर करना पड़ा, क्योंकि अगर इसको हम नॉर्मल ऑर्डर में करेंगे मरदुन फ़ी कुलूबिहिम, तो वो फिर फ़ी कुलूबिहिम उसकी सिफ़ा बन जाएगी कि बीमारी जो इनके दिलों में है, वो फ़ी कुलूबिहिम फिर डिस्क्राइब कर रही होगी उस मर्ज़ को कि कौन-सी बीमारी वो जो इनके दिलों में है। आगे फिर वो मुरक्कब बन जाएगा। अभी इसको जुमला बनाने के लिए हमें मरदुन को मौखर करना पड़ा है। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है, लेकिन इसमें सिर्फ़ नहीं आएगा क्योंकि ये इसको मौखर करना नॉर्मल है जुमला बनाने के लिए। इसी तरह अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए लहुम, लाम जो है ये लाम ऑफ ओनरशिप, एक तो लाम होता है स्ट्रेस के लिए, ये लाम अभी हमने जो पहले किया था ओनरशिप वाला लाम है कि उनके लिए है अजरन हसनन, अच्छा अजर। अब यहाँ पे भी अजरन क्योंकि नकिरा है और हसनन उसकी सिफा है, इसलिए उसके साथ ही है, तो अजरन हसनन मुअख्खर है कि उनके लिए है, इसलिए हम है डाल देंगे क्योंकि जुमला बन गया। इन अन्ना लहुम अजरन हसनन, तो सिर्फ उनके लिए अच्छा अजर नहीं है, इसमें सिर्फ नहीं आएगा क्योंकि ये जो था मुब्तदा ये नकिरा है और अन्ना की वजह से ये नसब है। अन्ना लहुम अजरन हसनन। अगर हमने इसको अजरन हसनन को पीछे कर दिया तो लहुम फिर उस अजर की सिफा हो जाएगी कि वो अच्छा अजर जो उनके लिए है। अगर हम इसको शुरू में डालेंगे और बाद में लहुम होगा तो फिर वो लहुम जो होगी वो उस अजर की सिफा बन जाएगी, इसलिए हमने इसको मौखर किया। हर्फ नसब व इस्मुहा मुब्तदा मौखर है, चूँकि हर्फ नसब और इसके इसम के दरमियान फ़ासला आ सकता है, इसलिए इसका मुरक्कब का एक हिस्सा फ़ासले पर हो तो पूरा मुरक्कब ही मौखर तस्वर किया जाएगा। अब अन्ना जो है, ये हालाँकि शुरू में ही आया है,
لیکن یہ اور اس کا اسم ملا کے مبتدا بنتے ہیں، اس لیے اس کو مؤخر ہی کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ انا شروع میں ہے اس لیے نارمل آرڈر ہے. یہ انا اور اجرن حسنن ملا کے پھر پورا مبتدا بنتا ہے نا، اس لیے اس کو مؤخر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. کدھر گیا؟ اچھا، غیر معمولی جملوں کا دوسرا نمونہ جس میں مبتدا اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے لیکن خبر اور متعلق بالخبر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. جملے میں کسی قسم کے معنی پیدا کر سکتا ہے جس کا اندازہ سیاق و سباق سے لگایا جا سکتا ہے. زور دینا اور اہمیت دینا یا دلچسپی کا اظہار کرنا، اس کے معنی میں سے دو بنیادی معنی. ایک تو التوکید ہوتا ہے کہ اگر ہم مبتدا آپ کی اپنی جگہ پہ ہی ہو لیکن متعلق بالخبر خبر سے پہلے آ جائے، تو یہ ایک تو اس میں توکید کے معنی آ سکتے ہیں کہ اس کو امپورٹنس دی گئی ہے، یا الاہتمام ہوتا ہے کہ اس کو دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے. یہ دو آپشنز ہو سکتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اب واللہ تو سمپلی سب سے پہلے مبتدا آ گیا. علی کل شیء یہ اب جار مجرور ہے، اور کلی شیء پھر مضاف الیہ، اس لیے سارے کا سارا آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو یہ سارا آپ کا متعلق بال خبر ہے، اور جو خبر ہے وہ مؤخر ہے قدیرن. اب یہ قدیرن جو ہے یہ خبر ہے. جب ہم نے کہا تھا مبتدا وہ مبتدا نکرہ ہو تو اس کی صفہ ہوتی ہے، کیونکہ خبر تو ہوتی نکرہ ہے، اس لیے اس میں کنفیوز نہیں کرنا ہے آپ نے. مبتدا اپنی جگہ پہ ہے اور وہ معرفہ ہی ہے اس میں. پھر یہاں پہ متعلق بالخبر مقدم ہوا ہے اور خبر مؤخر ہوئی ہے. یہاں اوپر جو تھا وہ مبتدا مؤخر ہو رہا تھا. مبتدا جو تھا وہ غیر معمولی طور پہ نکرہ تھا، کیونکہ مبتدا نارملی معرفہ ہوتا ہے. یہاں پہ نکرہ خبر ہے جو کہ خبر ہوتی نکرہ ہے، اس لیے وہ جب بعد میں آئے گی متعلق بالخبر کے تو وہ ان یوزول آرڈر ہی ہے. تو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ کیونکہ متعلق بالخبر مقدم ہو گئی ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے مزید جو ہے سٹریس ڈالنا ہے کہ وہ ہر طرح سے ہر چیز پر قادر ہے. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں سٹریس ڈالا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے اوپر قدرت پہ. یہ بات یاد رکھیں کہ بے قاعدہ اور غیر معمولی اور نایاب جملوں میں فرق ہوتا ہے. ابھی تک جملوں کی اس قسم کا ذکر کیا گیا ہے جو معمول سے ہٹ کر بنتے ہیں، لیکن ان کی مثالیں قرآن مجید اور ادب میں عام طور پر ملتی ہیں. اچھا، ابھی ہم نے کوئی نایاب جملے بھی ہوتے ہیں، وہ ہم پھر ایڈوانس میں کبھی کریں گے. اچھا جی، یہ مشق ہم نے میرا خیال ہے کہ کی تھی. ہم اس کو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کی تھی یا نہیں کی تھی. اس کو ہم کر لیتے ہیں. دیے گئے جملوں میں مبتدا کے نیچے ایک، خبر کے نیچے دو اور متعلق بالخبر کے نیچے 3 لکیریں لگائیں. اگر کوئی جز مقدم یا مؤخر ہو تو اس کی بھی نشاندہی کریں. چلیں یہ والا ہم یہ مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم چھٹی کر لیتے ہیں. اچھا جی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. اس کو اگر چلو ہم لکیریں اب وہ یہاں پہ میرے حال میں نہیں لگا سکتی، تو ہم ویسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ لکیر لگا لیں گے. اس میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ میں مبتدا کیا ہوگا؟ رزقکم. رزقکم آپ کا مبتدا ہے، اور فی السماء متعلق بالخبر ہے کیونکہ یہ جار مجرور ہے. اچھا، اس میں اختصاص ہے یا نہیں ہے؟ رزقکم جو ہے
یہ آپ کا مبتدا ہے اور مبتدا نارملی معرفہ ہوتا ہے. اور رزقکم کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ جو ہے کم آپ کا جو ضمیر ہے اس کا سٹیٹس بتاتا ہے کہ آپ کا مضاف پراپر ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی وہ کم جو ہے یہ پراپر ہے اس لیے رزقو جو ہے یہ بھی پراپر ہے. تو یہ پورا کا پورا پراپر ہے، معرفہ ہے، اور معرفہ نارمل آپ کا مبتدا ہوتا ہے. اس لیے مبتدا کو شروع میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ مؤخر ہو گیا ہے. تو جب معرفہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو پھر اختصاص کے معنی آتے ہیں. تو اس میں آئے گا صرف وفی السمائی کہ آپ کا جو رزق ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے، کہ آپ جو مرضی کر رہے ہیں اس سے نہیں آ رہا، وہ آسمان سے ہی آ رہا ہے صرف. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. تو یہ ہم تو سب سے پہلے آپ کے پاس ضمیر آ گئی تو وہ آپ کا مبتدا ہو گیا. جب بھی ضمیر آ جائے، حرف نصب آ جائے اور لیسا کانا آ جائیں تو یہ وہ گیو اوے ہوتے ہیں کہ یہ مبتدا ہی ہیں. ہم سب سے پہلے آ گیا تو ہمیں اپنا مبتدا مل گیا. فی غفلتن، فی غفلتن جار مجرور ہے اس لیے متعلق بالخبر ہو گیا. اور موردون آپ کی خبر ہوگی. اونا ہے رفع ہے، تو دوسرا رفع جو ہوتا ہے وہ آپ کا خبر ہوتی ہے جب وہ آپ کو مبتدا کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، کہ یعنی کہ ان اپنی غفلت میں وہ اگنور کرتے ہیں. تو یہ مبتدا تو اپنی جگہ پہ ہے اور متعلق بالخبر اور خبر کی آرڈر چینج ہوا ہے اس لیے اس کے اندر بھی وہ آئے گا اسپیشل میننگ. فیہ آیات بینات. اس میں آپ سب سے پہلے تو بتائیں مبتدا اور خبر متعلق بالخبر. فی ہی جو ہے نا جار مجرور ہوگا اور آیات بینات موصوف صفہ. آیات بینات موصوف صفہ ہے اور یہ مبتدا ہے، لیکن مبتدا یہاں پہ یہ نکرہ ہے. تو نکرہ مبتدا مؤخر ہے تو وہ ایک نارمل بات ہے، وہ مؤخر ہی ہونا تھا، اس لیے اس میں اختصاص نہیں ہوگا. تو فی ہی آیات بینات میں متعلق بالخبر پہلے آیا ہے، مبتدا بعد میں آیا ہے، لیکن کیونکہ مبتدا نکرہ ہے اس لیے اس کو بعد میں ہی آنا چاہیے تھا. اگر یہ پہلے آ جاتا تو پھر یہ آیات بینات کا ایک اور صفہ ہو جاتی فی ہی، کہ آیات جو کلیئر بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں. تو اس کے اندر ہونا بھی آیات کی ڈسکرپشن بن جاتی. تو اس کو جملہ بنانے کے لیے اس مبتدا کو مؤخر کر دیا ہے کیونکہ وہ نکرہ ہے، اس لیے یہ نارمل آرڈر ہے. نکرہ مبتدا مؤخر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر اختصاص نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. ان اللہ تو حرف نصب آ گیا تو سیدھا سیدھا ہمیں مبتدا مل گیا. بکم جار مجرور ہے متعلق بالخبر. لرؤوف الرحیم، لام جو ہے لام تو ایمفیسس والا ہے، یہ لام توکید ہے، صرف یہ حرف جر نہیں ہے کیونکہ حرف جر پہ زیر ہوتی ہے، لی ہوتا تو حرف جر ہوتا. لرؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم یہ ہم نے کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں تو وہ موصوف صفہ نہیں ہوتے، وہ دو مختلف خبریں ہو جائیں گی. رؤوف رحیم، ایک خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، اور خبر جو ہے وہ متعلق بالخبر کے بعد آ رہی ہے، اس لیے اس میں
होगा कि इन अल्लाह बेशक मतलब बीकुम आपके लिए, तो ये स्पेशली आपके लिए, ख़ास तौर पे आपके लिए, तो इसमें थोड़ा सा इख्तिसास आ रहा है। बेशक अल्लाह स्पेशली आपके लिए रऊफ़ रहीम है। व अलाल वारिसिल मिस्लु ज़ालिका। अब अला हर्फ जर शुरू में आ गया तो ये आपका वो हो गया मुतालिक बिल खबर मिस्लु ज़ालिका। अच्छा, अब मिस्लु जो है ये लाइट है, इस गैर मुनव्वन है, और ज़ालिका जो होता है वो मबनी होता है। ज़ालिका रफ़ा नसब जर में सेम होता है। तो मिस्लु ज़ालिका जो है वो मुदाफ मुदाफिले है, क्योंकि अगर वो जर हो सकता है तो फिर वो जर ही होता है। मिस्लू जो है उसके ऊपर अल नहीं है, वो गैर मुनव्वन है, और जब भी ऐसे हो तो ज़्यादा चांस है कि वो मुदाफ ही है। तो मिस्लू ज़ालिका मुदाफ मुदाफ इलैह है, मिस्लू रफ़ा भी है, और क्योंकि ज़ालिका जो है ये इसम इशारा ये वो होता है मारिफा होते हैं जो इसम इशारा आपके होते हैं। तो अगर आपका मुदाफ इलैह मारिफा है तो फिर आपका मुदाफ भी मारिफा है। तो फिर ये जो आपके पास मुब्तदा है ये मारिफा है, और मारिफा मुब्तदा आपका मुअख्खर हुआ है, इसलिए इसके ऊपर स्पेशल मीनिंग आएगी, क्योंकि मारिफा मुब्तदा को का नॉर्मल ऑर्डर यही होता है कि वो शुरू में आता है। तो इसलिए इख्तिसास है कि और जो वारिस होता है उसके ऊपर भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, या उसके सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़हुम फ़ीही सवाउन। फ़ा जो होता है, फ़ा से आपके वो ग्रामर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुम जो है आपका मुब्तदा हो गया क्योंकि वो ज़मीर है। उसके बाद फ़ीही जो है जार मजरूर है, इसलिए ये मुताल्लिक बिल खबर है। सवाउन आपकी खबर है, तो ये भी खबर मुताल्लिक बिल खबर का ऑर्डर फिर चेंज है, इसलिए इसके अंदर इख्तिसास होगा, क्योंकि मुब्तदा अपनी जगह पे और मुतालिक बिल खबर जो है वो खबर से पहले आ गया, इसलिए इसके अंदर भी स्पेशल मीनिंग आएगी। हाल हमारा घंटा भी पूरा हो गया है, और इस मश्क में कोई कंफ्यूजन है? इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। इसके बाद जो अगला है मिल्कियत और मौजूदगी ज़ाहिर करने वाले जुमले, ये थोड़ा सा तो हमने आज भी डिस्कस कर लिया, ये कर लेंगे, और इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में चलेंगे, वो जो इंशाल्लाह मंगल को ही हो जाएगी, अगर कोई और मसला ना हुआ तो। तो आज हम इधर ख़त्म कर लेते हैं।